So first of all, what is FMA? FMA is the FlexCast management architecture in which the main components are delivery controller, VDA agent, broker service. Okay, and in FMA there is no IMS service to communicate between server to server. Only broker service is responsible to communicate with delivery controller. In Zenap 6.5 or IMA architecture is a we create form. In FMA we create site. What is worker group? The next question, what is worker group? Worker group is the collection of same type of servers by feature wise, by application wise, by department wise. Like we are like OU. Is a similar as a OU. Once we apply any policy on the worker group, it will apply under the server, which is under the worker group. Like we have created a worker group ABC. Under that we have put 6 or 7 servers. So once we apply the policy on ABC worker group, it will automatically or on hierarchy basis applied on the all member servers. Same as is a machine catalog. What is the use of machine catalog and what is machine catalog? Machine catalog is used to create multiple servers automatically using the master image in MCS, machine creation services. Delivery group is the combination of same type of servers or the combination. Yeah, no, not the master catalog. Always once we create multiple machines, we need to select a single master catalog server of golden image, and using that golden image we will create multiple servers. Once we create multiple servers, like we have created 10 servers, then next step we need to create the delivery group, and in a delivery group we can select the servers. It's not necessary that we have to select all that 10 servers. We can select 2 servers and create a delivery group, and 2 servers are for particular department, 2 servers for particular department, 2 servers for particular department. On the location wise, on the zone wise, we can create the delivery group. Any confusion? सपोज मैंने मशीन कैटलॉग से मैंने 3 मास्टर इमेज बना लिए गोल्डन सर्वर, उन पे किसी पे SAP डाल दिया, किसी पे हाइपरियन डाल दिया, किसी पे कोई दूसरी एप्लीकेशन डाल दी, टैली डाल दी या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाल दिया। अब मैंने हर एक मशीन कैटलॉग से 3 हर एक गोल्डन इमेज से मैंने 3 मशीन कैटलॉग बना लिए, हर एक में 10-10 सर्वर डाल के। ठीक है, अब मैं डिलीवरी ग्रुप क्रिएट करूंगा, तो डिलीवरी ग्रुप में जाके मेरे को सारे सर्वर दिखाई देंगे। उस सर्वर पे मैं जाके जो जो सर्वर सेलेक्ट करूंगा वो उस डिलीवरी ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। अब उस डिलीवरी ग्रुप को मुझे अकाउंट सेक्शन में एक्सेस देना है, या मुझे उसमें मार्केटिंग में एक्सेस देना है, या मुझे किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूज़र ग्रुप को एक्सेस देना है, वो मैं दे दूँगा और उनको वो सर्वर और वो एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो जाएगी। Just called a delivery group, just like as a combination of server as well as the application based. Yeah, it's once we create the delivery group, after that, at the time of creating delivery group, same time we can create the applications, or if same time we don't want to create the application, is that there are one tab is there, application. Using that also we can create application later. Okay. नहीं, बात है कि the thing is that machine catalog is a member of delivery group, right? फर्स्ट 7.x का कंसोल देखा है आप लोगों ने? हाँ। वेट, आई एम शोइंग यू। No problem. First one, you need to create machine catalog. Before creating machine catalog, we need to create
golden image or golden server. अरविंद जी, एक क्वेश्चन है, जैसे आप कह रहे हो गोल्डन इमेज सर्वर, तो उसके लिए हमें एक अलग से सर्वर खड़ा करना पड़ेगा, देन उसके अंदर जो जो हमें एप्लीकेशन चाहिए, जो जो हमें पब्लिश करवानी है, ये जो भी कुछ कराना है, हम उस इमेज के अंदर डाल के, जस्ट लाइक इमेज हम जो जस्ट लाइक जैसे हम कहते थे, जैसे हम पहले यूज करते थे घोस्ट इमेज, सेमेंटिक का जो घोस्ट, जस्ट लाइक वैसी एक इमेज प्रिपेयर करके रख लेंगे, एक राइट? मिनट, नहीं, समझो घोस्ट इमेज अलग होता है, कॉपी। ओके घोस्ट ऐसे कह सकते हैं जब मशीन कैटलॉग के थ्रू मशीन बना रहे हैं, दैट इज सिमिलर टू घोस्ट। बट ओके यहाँ ओके पे ओके पहले हम डिलीवरी कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे। डिलीवरी कंट्रोलर ओके इंस्टॉल करने के बाद जब दूसरी मशीन क्रिएट करते हैं, व्हेन वी आर क्रिएटिंग सेकेंड मशीन, एट दैट टाइम इट गिव्स अस टू ऑप्शन, डिलीवरी कंट्रोलर, इधर डिलीवरी कंट्रोलर और VDA। वी नीड टू गो टू द VDA. Once we start installing the VDA, it will provide two options: master catalog or virtual machine. If we want to create a virtual machine, then directly we can create it. If we want to create the master image, we can create the master image. After installation, whatever the application we required, we install on that master image. ओके इंस्टॉलेशन के बाद उसको पावर ऑफ कर देंगे। ओके ओके, देन वी गो टू द मशीन कैटलॉग। मशीन कैटलॉग पे जाने के बाद एक और चीज़ मैंने दी थी, स्टाल हुड, कार स्टाल हुड। ओके ओके, देन you go to install the delivery controller, but here you have to install virtual delivery agent. Once the installation will done, this is your for this is for the delivery controller. Here you can see delivery controller, the studio component. Once it's installation done, then we'll configure it, deliver application. Here this we are creating site name cop2. Okay, these are the three databases: site database, monitoring database, logging database. Okay, once the installation will done, is a license server asking. Here you can provide the name of the license server or FQDN of the license server, fully qualified domain name. The installation is done. Okay, and after that you need to create a VDA agent. This is the another method of creating. This is the option to create the second delivery controller if one is existing in the environment. And this is the administrator role. I already shown you how to create the administrator, add the administrator. Remember that? Anyone remember how to add the administrator? ये आपने 6.5 में बताया था, हमने Seven. कल ये नहीं, बताया था। 7.x में भी बताया था, आई थिंक। नहीं नहीं, अभी 7 पॉइंट नहीं बताया, नहीं किया था हम लोग। नहीं किया था, वो हमने नहीं किया था। ओके, तो कोई नहीं, अभी मैं दिखा दूंगा आज। ठीक है, इससे अबाउट द VMware, how to install the delivery agent. First go to the virtual apps and desktop, then it will give you the same options: delivery controller, VDA. You need to select the VDA option here, then it will show you create the master image, MCS. Okay,
create a master image using Citrix provisioning, third party, but you are not using provisioning services here, or enable brokered connection for server. You need to choose the master image. Once you create the master image, then you need to go to the next option, delivery controller, and in delivery controller you will get the option delivery group. So once you go to the delivery group, it will ask what is the name of or location of the, it will show you the master image server. Okay, so suppose I'm telling again, first you need to create a delivery group server, then one more machine you want to create and install VDA agent. At the time of installing VDA agent, you will get this option, create a master image. And once you create the master image, then machine you need to create the machine catalog. Okay, once machine catalog you select the machine catalog, at the same time it will ask, using this master image, how many machines do you want to create. Then you need to choose 3, 4, 5, 10, 100 machines you want to create. Just put the number, and then the machine catalog will be created, and after that you go to the next tab with delivery group, and then you will create the delivery group. Okay, now I am showing you, this is master image. Never go install workspace app in any of that, and virtual delivery group agent is a required. Even you are creating master image or VDA, in both virtual delivery agent is required. So once the installation will done, in the mid of the installation you need to provide the name of your controller, delivery controller. The first server you have created, delivery controller, that full name you have to provide is the FQDN. Once you provide the name, you need to click on test connection, then it will show you the green check, and then add. Okay, here, and then it's add and the installation. These are the required port. 80 14944 for is ICA, 2598 session reliability, 8008. I have mentioned all the port in the this sheet also, you can go through that. And this is real time audio port. This is for license firewall port 8286 and 8280. Then the installation has been done. Okay, this is the installation of virtual delivery agent as a master catalog. Once it's done, then you need to install your application on the golden image or master image. Now install application which you want to publish. On master image, not in master image, on VDA.
VDA. Once you before creating, and one more thing I need to tell you, here is a first option. I am putting this first. ये थोड़ा सा इजी रहेगा तुम लोगों को समझने में, ठीक। फर्स्ट क्रिएट VDA using master image, then install apps which you want to publish for users. Okay, you can delete this here from here, because once you done this first step, after that you not need to install anything on the VDA, because it's already installed on the master image, and VDA is the copy of your master image. Okay, now any doubt? Anyone, any doubt? भाई लोग बोलो, कुछ आवाज नहीं आ रही है। ये नहीं लग रहा, चलो इश्यूज लग रहा। एक बार अरविंद हम बताते हैं, अगर आपको कुछ इसमें लगता है तो फिर आप बताना, क्योंकि हम कुछ गलत तो नहीं बता रहे। फर्स्ट हम जब भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो फर्स्ट हम पहले एक अपना डिलीवरी कंट्रोलर जो भी अपना साइट फॉर्म जो भी हमने बनाना है वो बना लेंगे। देन उसके बाद हम जब फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं तो एज अ मशीन क्रिएशन सर्विसेज के थ्रू मास्टर कैटलॉग जो हमारी इमेज बनती है वो फर्स्ट हमारी मेन गोल्डन इमेज होती है, राइट, थ्रू VDA, राइट। ठीक है। उसमें हमें जो भी इंस्टॉलेशन करना है वो हम इंस्टॉलेशन करके रख लेंगे। देन जब वो हमारा वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद फिर हम द्वारा एक मशीन कैटलॉग के थ्रू हम उसको एक डिलीवरी ग्रुप के अंदर ऐड करा देंगे, पर्टिकुलर जो हमारा VDA बना हुआ होगा, राइट राइट। देन फिर हमें जो भी पब्लिश कराना है वो उस VDA के थ्रू हम उसको पब्लिश करवा सकते हैं थ्रू डिलीवरी कंट्रोलर, मतलब जो कमांड सब जो हमारा। Whenever I'm going to upgrade like 7.1 to 7.15 like that, so first take the backup of your database, run and disable the services script like disable services.ps1। ये स्क्रिप्ट इसमें दी है, मैं स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ऑन द कंट्रोलर सारी सर्विसेज ऑफ करके रन द अपग्रेड डेटाबेस स्क्रिप्ट। सारी सर्विसेज मींस जो डेटाबेस रिलेटेड, दिस इज ओनली टू अपग्रेड योर डेटाबेस। This is for the studio. Start automatic site upgrade. Site upgrade means where is the site database? Site database is stored on SQL server. Okay. Now we'll go with the machine catalog. MCS पे नहीं जाना है अभी, MCS का अलग से बताऊंगा। ये देख लेना persistent versus non persistent मशीन क्या होती है, ठीक है। इसमें काफ़ी लंबा ये दिए, चलो ये मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंस, ठीक। इसमें और क्या चीज़ है, कॉन्करेंट सेशन है, सॉर्टेड रिक्वेस्ट, जोन कैसे वर्क करता है, इसके जोन में और 6.5 के जोनिंग में डिफरेंस है। जोन को इंट्रोड्यूस किया था 7.7 में, ठीक है। अब जैसे ये दिया है जोन, क्रिएट जोन हमने क्रिएट कर लिया है यहाँ से। अब किसी भी सर्वर को जैसे 6.5 में एक जोन से दूसरे जोन में ले जाते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं।
अरविंद जी, इसमें जैसे आप इसमें हम यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं जैसे, और उसमें जब हम 6.5 में क्रिएट करते थे, जब हम SQL डेटाबेस क्रिएट करते, मतलब SQL डेटाबेस जब हम कॉन्फ़िगर करते थे हाँ फर्स्ट टाइम, तो उसी समय हमसे जोन पूछता था कि बाय डिफॉल्ट नहीं करना, हम बाय डिफॉल्ट करके हम उसको नेक्स्ट कर देते थे। सीक्वल पे नहीं करते थे हम, जब हम ज़ेनएप मेंबर सर्वर क्रिएट करते थे, हाँ जी। कोई भी दूसरा ज़ेनएप सर्वर क्रिएट करते थे, तब वो हमसे हाँ हाँ। पूछता था कि डिफ़ॉल्ट जोन में ले जाना है, या हमें उसी समय पे ऑप्शन देता था टू क्रिएट अ न्यू जोन। वो तो दूसरा दूसरा जब हम कोई सर्वर नया ऐड करने के लिए बोलता था ना, वो हाँ तो वो दूसरा फर्स्ट टाइम जब सर्वर। हम, हाँ, जब फर्स्ट टाइम हम क्रिएट करते थे तो वो बाय डिफॉल्ट जो भी हम जोन उसको दे रहे हैं वो उसी जोन में, डिफॉल्ट जो जोन रहता था हाँ हमारा उसी पे फर्स्ट चला टाइम जाता वाला, था, हाँ। वो उसी पे चला जाता था। इसमें हम क्रिएट करते हैं पहले, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, या इसमें भी वैसे ही होता है वो नहीं चीज? नहीं, इसमें हम जोन पे जाके हम क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास कोई जोन के लिए ऑप्शन नहीं आता है। ओके ठीक, ओके ओके। अब मशीन कैटलॉग के लिए ये मशीन कैटलॉग का ऑप्शन है। मशीन कैटलॉग में हम क्या होता है कि हम मशीन कैटलॉग के टैब पे जाते हैं। ठीक है, मशीन कैटलॉग जैसे हमारा इस स्टूडियो कंसोल में दिखा रहा था कि कहाँ गया? ये मशीन कैटलॉग, इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू का ऑप्शन आएगा, और उसके बाद मशीन कैटलॉग सेटअप आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है विच डेस्कटॉप एक्सपीरियंस डू यू वांट टू, ये रैंडम और स्टैटिक, देर आर टू टाइप ऑफ डेटाबेसेस सर्वर्स। रैंडम मशीन क्रिएट करना है या स्टैटिक, इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि जब डीपली उस पर बात करेंगे तो। इसके बाद है डू यू वांट टू सेव एनी चेंजेस यूज़र मेक द डेस्कटॉप। यस, अगर यूज़र ने कोई डेस्कटॉप में चेंज किया तो। अगर पर्सनल वी डिस्क का भी ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे होगा, ऐप डिस्क होता है। जब हम ऐप डिस्क का फीचर लेते हैं तो पर्सनल वी डिस्क का ऑप्शन आता है, बट हम ऐप डिस्क का ऑप्शन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ऐप डिस्क अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं आते हैं। रैंडम और स्टैटिक का ऑप्शन आएगा। फिर इसके बाद ये ऑप्शन आता है मशीन दैट आर पावर मैनेज और मशीन दैट आर नॉट पावर मैनेज। ठीक, अगर मैंने होस्टिंग कॉन्फ़िगर कर रखी है, होस्टिंग जानते हो कि मैं उसको VMware से कनेक्ट, हाइपरविजर यस, टाइप। हाइपरवाइजर कनेक्शन, AWS से कनेक्ट कर रहा हूँ, गूगल से कनेक्ट कर रहा हूँ, या एज्योर से कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है तो ही मुझे ये वाला ऑप्शन इनेबल करेगा। अब PVS तब इनेबल करेगा जब यहाँ पे PVS से कनेक्ट होगा ये। तो अभी मान लो कि मेरा मशीन कैटलॉग MCS से है, MCS पे मैं जाऊँगा, MCS पे जाऊँगा, ये अदर टेक्नोलॉजी दिखा रहा है अभी तो। और उसके बाद ये जब उसके थ्रू चला जाऊँगा तो ये मेरे से ये पूछेगा कि कितनी मशीन क्रिएट करना है, वर्चुअल मशीन्स पे आके, हाउ मेनी वर्चुअल मशीन्स डू यू वांट टू क्रिएट। दूसरा कि टोटल मेमोरी कितनी होती है, ये यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, अप और डाउन कर सकते हैं इसको। नंबर ऑफ मशीन 1 की जगह हम जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो हम दे सकते हैं यहाँ पे। मान लो मेरी 10 की रिक्वायरमेंट है, हमने यहाँ पे 10 मशीन दे दी। उसके बाद ये मेरे से ये पूछेगा, ये बीच वाला ऑप्शन छोड़ देना क्योंकि ये डेटाबेस का है। ये जो ऑप्शन है टास्क कंसोल, ये तुम्हारे VMware का ऑप्शन होता है, उसमें ये देखने के लिए कि उसमें कितनी मशीनें क्रिएट हो रही हैं, ये VMware कंसोल है। ठीक है, इसको छोड़ सकते हो। फिर इसके बाद आता है जब वो 10 मशीनें हमारी क्रिएट हो जाएंगी, ये मशीन कैटलॉग में इसने मशीन क्रिएट कर दी, अब इसमें फिर से एक मशीन ऐड करना है, तो हम यहाँ पे ऐड मशीन करेंगे और जाएंगे, फिर से हमको ये ऊपर वाला ऑप्शन आएगा, और फिर हम यहाँ पे एक मशीन ऐड कर देंगे। अब हमें एक मशीन रिमूव करना है। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए भी रिमूव का ऑप्शन आता है इसके अंदर, और वहाँ से जाके हम, या तो हम डिलीवरी ग्रुप से जाके इस मशीन पे आके हम, इस पे आता है VMware पे किसी ने काम किया है? हाँ, VMware पे अगर मैं ये चाहूँ कि किसी यूज़र का सेशन ना जाए तो क्या करते हैं हम उसमें? सेशन वगैरह में मतलब हम ये चाहते हैं कि VMware की मशीन पे कोई यूज़र कनेक्ट ना करे, मतलब वो लॉग इन कर जाए लेकिन उसका कुछ शो ना हो, कुछ ना ना हो, वो जब तक वो करने वाला लॉग इन ये ही ना कर लॉ पाए। लॉग इन लॉगिन भी ना करे। हाँ, नहीं स्टेट जैसे मतलब पावर ऑन रहे मेरा सर्वर, बट उस पर यूज़र लॉग इन ना कर पाए। नहीं, आइडिया नहीं। ओके,
देखिए ऐसे एडी में करेंगे तो यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा, हाँ, परमिशन के लिए। परमिशंस का भी एक एडी में और कमांड भी होती है। मैंने एक हाँ, एक्सेल शीट दी है, उसमें भी वो कमांड पड़ी हुई है। एक्सेल शीट आपने अभी कोई नहीं दी है। अरे यार, तो मैं तुम लोगों को सारे डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, रुक जाओ फिर। इसमें देखो ऐड मशीन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एडिट मशीन कैटलॉग, एडिट पे जाके हम मशीन रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक। डिलीट मशीन कैटलॉग, पूरी पूरी मशीन कैटलॉग डिलीट कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि मशीन हमें कोई डिलीट करना है, डिलीट ही करना है, तो हम डिलीवरी ग्रुप से जाके करेंगे। डिलीवरी ग्रुप में जाएंगे तो डिलीवरी ग्रुप में एक ऑप्शन आता है, डिलीवरी ग्रुप पहले आ जाए, ये ऐड एप्लीकेशन का, ये तो डिलीवरी ग्रुप के अंदर से ऐड एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा अब, क्योंकि अभी मुझे लग रहा था कि मैंने बता रखा है तो वो कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा था, ठीक। ये सारी चीज़ें मैं कल दिखा दूँगा। पैच अगर हम मास्टर कैटलॉग पे डालते हैं और वो उस पैच को हमें उसके मेंबर जितने भी वीडियो हमने उससे बनाए हैं उन सब पे हमें अपडेट करना है, तो हमें अपडेट का ऑप्शन आता है। अपडेट पे क्लिक करेंगे, फिर अपडेट पे वो 3 ऑप्शन और आता है हमारे पास कि डू यू वांट टू अप्लाई इट इमीडिएटली और ऑन द वीकेंड और यू कैन शेड्यूल इट। तो जो भी तुम्हें वहाँ पे शेड्यूल करना है वो कर लो तुम वहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही करोगे, अगर इमीडिएट करोगे तो सारे सर्वर तुम्हारे इमीडिएट रीस्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही वो अप आएंगे उसमें वो सारे पैच अप्लाई हो जाएंगे जो कि तुमने अपडेट किया था मास्टर मशीन कैटलॉग पे, ठीक है। तो अभी तो ये सारी चीज़ें, ये लिंक भी बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगा, वैसे तुम्हारे पास है। इसमें तुम्हें मेन पेज पे इसके जाके बस एक एक चीज़ देखना है तुमको, स्टेप बाय स्टेप चेक करते रह जाना। जैसे ये तुम गए यहाँ पे, अब इसमें 7.15 है, 7.15 पे गए, स्टार्ट ईयर छोड़ देना, यहाँ से डिलीवरी कंट्रोलर से पढ़ना शुरू करना। पढ़ना भी नहीं, तुम्हें केवल इमेजेस देखनी है इसकी, ठीक है। इमेज में क्या क्या होता है थोड़ा थोड़ा गो थ्रू कर लेना इसको। ये है, गो थ्रू करोगे सारा ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अरविंद, आपने पहले शेयर किया हुआ है? अगर किया हुआ है फिर भी एक बार कर दो, डाल दो ग्रुप में। हाँ, मैं करा हुआ है अवनीश, नहीं करा हुआ है, मैंने सारा कुछ शेयर किया है, लेकिन फिर से मैं किए दे रहा हूँ यार, क्योंकि होता क्या है कि कोई नहीं, मैं कर लूंगा, सागर सर को मैं कर लूंगा। कोऑर्डिनेट करने से अच्छा उतना टाइम तुम्हारा बचेगा ना। ये लो अरविंद जी, वो एक्सेल भी दे देना जिसमें आप कमांड्स बता रहे थे ना सारी। वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, मेल कर दूंगा इसके बाद। अब आते हैं, हाँ अरविंद जी एक बात बताइए, ये मैं ट्राई कर रहा था, क्या नाम, VMware में मैंने मैक्सिमम कितना, मैं 3 मशीन क्रिएट कर सकता था मेरा सिस्टम में, ठीक है। मेरा और भी एक सिस्टम है उसमें भी VM डाला है, तो मैं तो उसको ब्रिजिंग करके मैं एक नेटवर्क पे, मैं राउटर का जो नेटवर्क है मेरा उसमें मैं लेके आ पा रहा हूँ, ठीक है। एक से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम है कि उसमें इशू है कि डोमेन में नहीं डाल पा रहे, बिकॉज देखो प्राइवेट नेटवर्क नहीं हो रहा, इसीलिए। तुम्हारा सिंगल लैपटॉप पे ही कर रहा हो ना सारा कुछ। सिंगल लैपटॉप में प्रॉब्लम है कि 3 से ज्यादा सिस्टम नहीं हो रहा है। देखो, एक तो तुम्हारी रैम कम है, हाँ, इसीलिए ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो तुम्हारा बेसिक मशीन है उस पे, अब अगर मान लो तुमने किसी एक मशीन को एडी बनाया अंदर VMware के अंदर, और अपने लैपटॉप को उस एडी पे डाल दिया, तो लैपटॉप ऐसे तो ऑन होगा नहीं जब तक एडी ऑन ना हो। और अगर तुमने अपने लैपटॉप पे एडी कॉन्फ़िगर कर दिया और उसको अंदर वाली मशीनों से करा दिया, तो तुम्हारी मशीनें बन सकती हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम लोकल लैन के थ्रू ही जाओ। जब तुम VMware इंस्टॉल करते हो, VMware वर्कस्टेशन, एट दैट टाइम इट्स क्रिएट टू निक। हाँ, 2 निक, एक VM8 करके, तो वो सिंगल निक पे भी चल जाता है, बट you have to provide the same IP range which is in your laptop। नहीं, वो तो ठीक है, वो मैं सिंगल उसमें तो मैं समझ रहा हूँ। मैं बोले कि दूसरा लैपटॉप में मैंने VM डाला, ठीक है।
वर्क स्टेशन डाला, उसमें भी मशीन मैंने क्रिएट किया। थ्रू ब्रिजिंग के थ्रू मैं दोनों लैपटॉप का जो नहीं एक कर में भी पाओगे, जैसे नहीं कर पाओगे, नहीं होगा ना, क्योंकि वो ब्रिजिंग के थ्रू केवल तुम्हारे लैपटॉप के ओएस से कनेक्ट होगा। लैपटॉप के ओएस के अंदर जो वर्क स्टेशन में जो ओएस है उससे नहीं कनेक्ट होगा। नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, पिंग कर रहा है। नहीं, पिंग करेगा लेकिन वो ओपन नहीं करेगा एक दूसरे को। उस ओपन केस में तुम ब्रिज पे। उस केस में तुम एक काम ये कर सकते हो। कितना कितना रैम है दोनों में? एक में 4 एक में 6 है। 6 में जिसमें मैं 3 डाला कर लिया, उसमें मैं 2 कर सकता हूँ। तो तुम एक काम करो यार, इतना जितना टाइम तुम इसमें वेस्ट करोगे ना, उससे अच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ वीडियोस देता रहूँगा डेली बेसिस पे। ठीक है, पूरा उसमें सिट्रिक्स का है, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, क्या है, वो तुम लोग देखते रहो। और जब ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर इसमें देखो वर्कर ग्रुप, सेशन होस्ट और ज़ेनएप सर्वर। यहाँ पे ज़ेनएप सर्वर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे वीडीए होता है। 7.x में वीडीए होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जोन दोनों में ही होते हैं, लेकिन जो जोन आया था, मैंने इसीलिए वर्जन लिख दिया है कि 7.7 में जोन को इंट्रोड्यूस किया था सिट्रिक्स ने ज़ेनएप 7.7 पे। इसी तरह से 7.12 में LHC आया था। LHC नहीं, मैं एक बात बता, ये जो ज़ेनएप 6.5 का जोन को हम लोग को समझना, क्योंकि अलग अलग जोन में हम लोग मशीन को ट्रांसफर करवा सकते हैं। देखो, ये 7. एक मिनट बता रहा हूँ। 6.5 में जोन क्या है? इट्स लोकेशन वाइज। लोकेशन तुमने 3 अलग अलग लोकेशन पे 3 अलग अलग जोन क्रिएट किए, उसको ZDC बना दिया। अब उसके अंदर तुमने मेंबर सर्वर्स बना दिए, वो जोन आपस में कनेक्ट करेंगे। केवल मेंबर सर्वर कभी भी कनेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जोन का कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा जब 7.x में जाएंगे। लेकिन 6.5 में जोन था, 6.0 में भी जोन था, 5.0 में भी जोन था, 5.5 में भी जोन था। बट 7.x जब आया था तो उस पर जोन का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, LHC का कॉन्सेप्ट नहीं था। बट इन्होंने 7.7 वर्जन 7.7 पे जोन को इंट्रोड्यूस करवाया। तो 7.7 फर्स्ट वर्जन था इनका जिस पे जोन का कॉन्सेप्ट आया था। इसी तरह 7.12 का जो आया था उसमें लोकल होस्ट कैशे आया था। 7.14 में आया था सेशन रिकॉर्डिंग। तो कौन से वर्जन में किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया ये पता होना चाहिए। अब LHC की बात करते हो, LHC से तुमसे पूछे कि इन विच वर्जन ऑफ 7.x सिट्रिक्स इंट्रोड्यूस द LHC। 7.12 with SQL database। और सेकेंड थिंग कि LHC 7.x में SQL को सपोर्ट करता है, बट 6.5 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को सपोर्ट करता है। एक और चीज़ कि अगर मेरे से कोई डिफरेंस पूछता है कि व्हाट्स न्यू और व्हाट आर द डिफरेंस इन दिस वर्जन, तो डिफरेंस के साथ साथ हम वर्जन में भी बताते हैं कि जोन आया तो 7.7 में आया, LHC आया तो उसको ये लगेगा हाँ बंदे ने स्टडी की है, इसको आता है। ये एक तरीका होता है इंटरव्यू देने का। सेकेंड थिंग, डिलीवरी सर्विसेज कंसोल था। डिलीवरी सर्विसेज कंसोल किस में होता था पता है? ये 6.5 से पहले जो वर्जन हुआ करते थे उसमें हुआ, 6.0 में हुआ करता था। 0 में हुआ करता। ठीक है, और ऐप सेंटर था 6.5 में। 6.5 में ऐप सेंटर। और सिट्रिक्स का सबसे स्टेबल जो वर्जन रहा है वो 6.5 रहा है। यहाँ पे स्टूडियो आ गया था और डायरेक्टर आया था। यहाँ पे हमारा एज साइट मॉनिटरिंग के लिए था। एज साइट मॉनिटरिंग के लिए 6.5 में मॉनिटरिंग के लिए एज साइट यूज होता था। एज साइट, हाँ जी। और 7.x में डायरेक्टर के थ्रू हम रिमोट सेशन ले सकते हैं। यहाँ पे ऐप सेंटर में होता था सेशन शेयरिंग का, तो हम उससे रिमोट सेशन लेते थे। IMA डेटा स्टोर होता था, यहाँ पे साइट डेटाबेस होता है जो SQL पे होता है केवल। ठीक, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है SQL होता है। हाँ जी। कहीं पे भी 7.x में किसी कोई और डेटाबेस यूज नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम SQL। बट बिफोर दैट इन 6.5
it supported Oracle DB2 SQL. Okay, it's a IMA protocol and services. IMA is used to server communication, server to server, और यहाँ पे होता है वर्चुअल डिलीवरी एजेंट और TCP, और यू कैन से इस अ ब्रोकर सर्विस। यहाँ पे होता था स्मार्ट ऑडिटर, यहाँ होता है सेशन रिकॉर्डिंग। सेशन रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि अगर आप किसी यूज़र के साथ ट्रबल शूट कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ ट्रबल शूटिंग, सपोज सत्यांकी इज ऑन द कॉल, सत्यांकी ने यूज़र का सेशन के लिए रिमोट लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम अवनीश आया कॉल पे, तो अवनीश फिर से ये नहीं कहेगा यूज़र से, उसको इशू नहीं समझ में आया, यूज़र के पास नहीं जा सकता ना कि यार मुझे फिर से, यूज़र कहेगा यार अभी एक बंदे ने सेशन लिया, अगेन यू आर कमिंग टू टेक माई सेशन। तो सत्यांकी विल शेयर द रिकॉर्डिंग विथ अवनीश, and Avnish will go through the recording and check the issue, and on the basis of that he will provide the troubleshooting or he will fix the issue. Okay, ये shadowing user होता था कि suppose some user is facing issue and you are not able to get the issue, or user is not able to send the snapshot, or after sending the snapshot you are not able to identify the issue. In that case, you request user to for the shadowing, you send the shadow request, user will approve that, and after that you can see his screen. Same thing is in director. Now is in shadowing is in director. Okay, any question? Satyanki? नहीं, ये तो ये shadowing is kind of MSTSC type of thing. Yeah, it's a type of thing, but MSTSC. No, it's a MSTSC is to take the remote session, but shadowing real time shadowing is suppose like here I am sharing my screen to you. जस्ट लाइक रियल टाइम पे जो आपको इशू आ रहा है, जब आप यूजर को रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो अप्रूव करेगा वहां से, देन आप उसको चेक कर पाओगे। जब वो अप्रूव करेगा तो यूजर की स्क्रीन आपको विजिबल हो जाएगी, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या एरर आ रहा है, वो आप देख सकते हो। वो आप देख सकते हैं, फिर उसको आप ट्रबल शूट कर सकते हो। ठीक है, और सेम ऐसी डायरेक्टर के थ्रू होता है। अब यहाँ पे ये डायरेक्टर के थ्रू होता है। डायरेक्टर से रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, शैडो भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे डाटा कलेक्टर होता था, यहाँ डिलीवरी कंट्रोलर होता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल मतलब मिनिमम 2 डिलीवरी कंट्रोलर होंगे लोड बैलेंस के लिए, बट ये है कि हर एक जोन में एक डेटा कलेक्टर होता है, इस वजह से यहाँ पे 1 पर जोन होता है। नेक्स्ट इज आई थिंक अबाउट द सेशन इमीडिएट इम्पैक्ट इज ज़ेंडेस्ट ऑफ वर्क विदाउट डेटाबेस। इसी को मैं ऐसे पूछ सकता हूँ, व्हाट हैपेंस इफ डेटाबेस कनेक्टिविटी is not available for both. If the database connectivity is not available, so the delivery controller hold the all caches. मतलब डिलीवरी कंट्रोलर के अंदर कैशेस होते हैं, इनको होल्ड करके रखता है सारी इंफॉर्मेशन का, और रियल टाइम पे वो। टेल मी अबाउट 6.5, व्हाट हैपेंस इफ द डेटाबेस इज नॉट अवेलेबल फॉर 6.5? 6.5 वो थ्रू LSC के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है लोकल्स, यूजर वो उसके थ्रू भी पब्लिश कर पाएगा। improve your speaking skill first. In the absence of data store in Synapse 6.5, user can access all the applications through LSC. LSC will store all the data. LSC is a replica of the data store, and that's why user will able to access the application. Suppose IMA service is down in any server, okay, and that application is hosted in one server only, and on that server IMA is down. What will happen? LSC IMA is down.
IME down, that means, sorry, license server, we are unable to connect No, contact with no, pass, No, pass, no, no, pass. Next. no. If the IMS service, एक बार आप दोबारा करेंगे क्वेश्चन? सॉरी, What थोड़ा सा happens मैं if अंडरस्टैंड. IMS service is down on a server in which a single application is published, or a single server which is hosting a application ABC, means ABC एप्लीकेशन केवल एक सर्वर पे है, ठीक है, और उस सर्वर पे IMS सर्विस डाउन हो गई तो इम्पैक्ट क्या होगा? Impact, the real time impact is all the session, the real time access session, which मतलब जो यूजर एक्सेस कर रहे होंगे एप्लीकेशन वो तो रहेगी. अपार्ट ऑफ दैट कोई नया सेशन वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, कोई भी न्यू यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा. Correct. Because at that time, once user is trying to open any application or going to the Citrix environment, at that time he is going through the storefront, is a ZDC or the Xanapp servers. Okay. So at that time, IMA is on roll. But once the application is about to open, that time user machine will directly connected with the Xanapp server, and in that case IMA will be enrolled. So once user is connected, there is no impact due to the IMA service fail, but the new user will not able to connect with that server because IMA is fail, and for the environment or Xanapp 6.5 environment, that server is not in the showing in the list of the ZDC. So ZDC as well as ZDC will not redirect the user on that server. Okay, but in 7.x there are two things. One is LHC, and before that LHC, Citrix introduced LHC on 7.12 with the version of 7.12, and before that it was using connection leasing. In connection leasing is a time of 14 days, means once the database server is failed, so user can access the application till 14 days, but only that application which he accessed in that particular 14 days. And before 14 days, if he accessed any application 15th or 16 or 20 days or a month back, No. that application will be not accessible in case of database. Only 14 days actually. Okay, clear? Arvind ji, through delivery controller, right? Yes. Okay. What is connection leasing? Difference Connection between leasing- LHC before 7.x and connection leasing from the version. So you know about the connection leasing introduction. I have Yes. Connection leasing. Connection before the 7.12 connection leasing has been introduced. LHC is a local host cache. It stores all the information which is in your site database. So in case of database failing, user can access the application through the local host cache. Connection leasing is a substitute of LHC, and before LHC 7.x, in the 7.x version, Citrix was using the connection leasing. So it's a limitation of 14 days. I think everything is mentioned over here. One Arvind ji, एक क्वेश्चन था इसमें. जो कनेक्शन लीजिंग, बेसिकली कनेक्शन लीज, if the connection lease and LHC start, once the broken service is down, so all the administrative things, just like you have mentioned in the document as well, administrator cannot run the studio, director, PowerShell console. Nothing. Both are the same to LHC if the down and connection lease is down, right? Connection lease is start. But now in 7.15 or 7.12 you have both options. If you want, you can enable LHC or disable connection leasing. If you want, you can enable connection leasing or disable LHC. There is a command. Yes.
और here is आपने mentioned it's a आपने 30 इसमें एक minutes. आर्टिकल दिया हुआ नीचे एक, हाँ, उसमें 1259 करके जो आर्टिकल है उसमें वो सारा उसका एलएससी का पूरा उसमें बता रखा है और कि यहाँ पे कैसे भी वो वर्क करता है। यहाँ पे भी कनेक्शन लीजिंग और इसका दोनों का ही दे रखा है। कनेक्शन लीजिंग मोड ये पूरा दिया है। कनेक्शन लीजिंग का जो टाइम होता है दैट इज 14 days. राइट। Okay, these are the reference documents. LHC reintroduced in ZenApp 7.12. How it difference with connection leasing? Uh, then it's a difference between both. Here it's mentioned about the duration. It's the all thing here. You need to go through that, because if you know all these things na, then at the time of practical things when you do हाँ, practical or एक एक क्वेश्चन था आपसे इसमें, जो अपना ये अभी ऊपर वाला जो आपकी इमेजेस हैं दो, इसमें एलएससी का, इसमें एलएससी में भी ब्रोकन सर्विसेज हैज अ टू डिफरेंट टू टाइप्स, नहीं टीसीएस फॉर द सिंक्रोनाइजेशन, सीएसएस ये एक सीएसएस इसमें, हाँ राइट। First no, is my primary. it's a synchronized service is different and broker service is different. It's a process. Okay. It's a not showing you the services. This is your local host cache. How local host cache works in 7.x. User, storefront. These are the VDAs. Is connected to the principal broker means delivery controller. Delivery controller Right. is connected with the database and is sharing all the data to the local host. Connection is a local DB. This box is denoted to the delivery controller. This big box is showing the delivery controller. In the delivery controller this is your local host cache, and this is the configuration Local host. synchronization service is to synchronize the data from here to here and here to here. Okay. Okay, and if in case you have two delivery controller, it means both LSC are in sync on the HH, high availability. High availability is for that's why in the delivery controller in the first question you shown that the minimum delivery controller required is 2, because of the high availability of your LHC. It's provide the high availability. Anyone knows what is high availability? One more thing is there, apart from high availability, there is one more thing is a TRS. fault tolerance in VMware. Okay, Hey, DRS भी DRS is different thing. DRS is used for the vMotion. fault tolerance and H. This is PowerShell command. Get broker side. Once you type this in the PowerShell, you will get the status. Is the which service is running, connection leasing or local host cache. But once you want to set LHC as a primary, then set broker side hyphen LHC local host local cache enable is a true, and connection leasing is failed. Just copy this command and paste. Then your LSC will be activated on that server. Okay. Okay. And next one, define FMA key components. Components means delivery controller, storefront, VDA, site database, monitoring database, your configuration logging database. These all are the component of FMA. Citrix receiver is a client basically. Studio is the component. Director Management is the component. console. Machine catalog, delivery group, valid machine type is a server OS or desktop OS. So all you only you have to go through the document. Just read it once or twice. No need to memorize this
only go through the document and read it minimum twice. Okay, it's a delivery group, application group. How the policies are getting applied? So policies are getting applied for Windows or Citrix. I am telling for Windows first. Windows organization unit, then domain level. Wait. Once you apply any policy on the OU, then the policy is applied on the OU first, then domain level, then site and local. But once you while you are troubleshooting any issue, Local at the time of troubleshooting, you need to follow this: local, site, domain, OU is called LSDU. Okay, but here I put Citrix also. In case of Citrix, first it applies to OU, domain, site level, Zenap site, but this is for the Windows policies. If I am talking about the Citrix policies, then Citrix policies applies first in the Citrix. And once you troubleshooting the issue, first you need to check the local GPO policies. How you can check it? One more command is there, is the rsop.msc command to check local policy. Okay, it's a rsop.msc. RSOP means resultant set of policy. Clear? This is virtual delivery agent registration troubleshooting. Sometimes once you create the VDA agent in the machine catalog or the delivery group, like you have created two machines, these machines are showing in the registration state unregistered. If it's showing unregistered, in that case no user will can access the application or the server. So to fix that, you have some troubleshooting steps here. First you check the event log on that server, confirm controller configuration, that server is configured in the controller or not. VDA machine member should be member of domain. Then this is the broker service. You need to restart this broker service and then check on the studio console. After restarting the broker service, it should be registered. Broker service in where actually is? Broker service is in your VDA, not on the delivery controller. VDA is showing unregistered, तो यहाँ तक आ गए. You need to log in into the VDA server. जिस भी VDA सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है, लॉगिन करके उसमें ब्रोकर एजेंट सर्विस आएगी. You need to restart that service and check on the console that is showing registered or not. And after that, अरविंद जी, I will interrupt you. एक बार अवनीश को अलाउ कर दीजिएगा, उसने फोन से ज्वाइन करा क्योंकि उसका काम है, वो लैपटॉप स्टार्ट हो गया उसका. ओके. अभी तो आया नहीं, बोलो फिर से जरा. एक बार बोलता हूँ मैं सुबह. कर रहा है अभी दोबारा से. तो अरविंद जी, कल का जो हमारा टास्क रहेगा वो हमारा इंस्टॉलेशन करेगा 7 का, राइट? 7.8. ठीक है. उसको वीडियो को एक बार मतलब जो पीडीएफ है उसको गो थ्रू कर लेंगे. ये जो लिंक मैंने दिया है ना, कार्ल स्टाइल लूडो वाला, वो देख लेना. हाँ? ठीक है.
हाँ अभी प्लीज आवाज आ रही है, म्यूट कर ले। ठीक। इसके बाद विंडोज़ फायरवॉल कनेक्शन। विंडोज़ फायरवॉल कहाँ से देखते हैं? विंडोज़ पे जाके कंट्रोल पैनल में कंट्रोल पैनल में फायरवॉल ऑफ होना चाहिए, ठीक है। ये किसका, वीडीए का होना चाहिए या यूजर का होना चाहिए? वीडीए में, वीडीए में, वीडीए में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। फिर डोमेन सर्विस नेम प्रॉपर है कि नहीं, डीएससी पे कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है। तो अगर देखो पिंग हो रहा है, नेम रिजोल्यूशन हो रहा है, मींस अगर तुम पिंग कर पा रहे हो किसी भी सर्वर को या उस पर्टिकुलर वीडीए को कहीं बाहर से, तो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन है। डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हैं कि आईपी एड्रेस आएगा तुम्हारा डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और अगर मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ से ही आती है, और नहीं तो तुम्हें जो भी प्रॉब्लम आएगी डीएनएस की या डीएचसीपी की वो तुमको इवेंट लॉग में मिल जाएगी। ये होता है इवेंट लॉग। सर्वर परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं? कैन यू टेल मी द कमांड? नहीं पता। परफॉर्मेंस सुना है किसी ने? PERF मॉन, परफॉर्मेंस मॉनिटर। इसमें जो भी कुछ तुम करना चाहोगे, डेटा कलेक्टर, रिपोर्ट, यहाँ से मैं एक्शंस पे जाके न्यू विंडो ओपन कर सकता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में सेट कर सकता हूँ, रिसोर्स मॉनिटर, ये सारे रिसोर्स आ रहे हैं, सीपीयू कितना है, डिस्क कितना है, मेमोरी कितना है, सारा कुछ। आई वांट टू सी अबाउट द सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, यूटिलाइजेशन। ये सर्वर पे चेक करते रहते हैं। अगर कोई सर्वर स्लो रन कर रहा है या यूज़र लॉगिन नहीं कर पा रहा है, तो ये इसलिए होता है कि जो मैं लोड इवेल्युएटर सेट करता हूँ, तो अगर मेरी मेमोरी हाई हो गई तो लोड इवेल्युएटर के अकॉर्डिंग क्या होगा, उस सर्वर को जेडीसी ये शो करेगा दैट सर्वर इज़ ऑन फुल लोड, या डिलीवरी कंट्रोलर के लिए भी वही आएगा दैट सर्वर इज़ ऑन फुल लोड, और उस पर किसी यूज़र का सेशन नहीं जाएगा। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट मैंने 2 टूल दे रखे हैं। ये जो ब्लू वाला है ये इसका लिंक है, सिट्रिक्स हेल्थ चेक असिस्टेंस। ये सारी चीज़ें जो ऊपर है ना उसको चेक करने के लिए एक्सटी पिंक अब यूज़ होता नहीं, तो बोलो तो मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि 6.5 तक एक्सटी पिंक टूल चलता था। इस पर क्लिक करोगे, सपोर्ट citrix.com आर्टिकल नंबर के साथ ये आ रहा है। यह है सिट्रिक्स हेल्थ चेक। सिट्रिक्स हेल्थ चेक असिस्टेंट टूल हैज़ बीन रिप्लेस्ड एक्सटी पिंक, ठीक है। ये इसकी डिटेल। तो ये टूल्स हैं, दोनों का वो भी दे रखा है। व्हाट डेटाबेस विल क्रिएटेड ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ सिट्रिक्स ज़ेनऐप एंड ज़ेनडेस्कटॉप एंड मेंशन सपोर्टेड डेटाबेस हाई अवेलेबिलिटी मेथड। डेटाबेस कौन कौन से होते हैं? 7.x की बात करें तो साइट डेटाबेस, कॉन्फ़िगरेशन लॉगिंग डेटाबेस, मॉनिटरिंग डेटाबेस। इसका रोल क्या है ये तुमको बताने की जरूरत नहीं, जो तुम्हें पता है उतना सफिशिएंट है इसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि जो मेरा सीक्वल सर्वर होगा, ये सारी चीज़ें किस पे कॉन्फ़िगर होती हैं, किस पे जाती हैं? मेरे सीक्वल सर्वर पे जाती हैं। सीक्वल पे। अब सीक्वल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? ऑलवेज ऑन हो सकती है, ठीक है। सीक्वल सर्वर डेटाबेस मिररिंग हो सकती है। मिररिंग मैंने तुम्हें बताया था, सेम डिस्क होती हैं, जो एक डिस्क पे होगा वही दूसरे डिस्क पे होगा, रेड वन टाइप, ठीक। हाँ, रेड का ही है ये सारा चीज़। हाई अवेलेबल ऑलवेज ऑन में क्या होता है कि एक सर्वर पे मेरा सिंक होता रहता है डेटा, और यही डेटा ये क्या करता है, ये ऑलवेज ऑन में ये दोनों आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। तो कल को अगर मैं इस मेन सिट्रिक्स इंफ्रा को इस पे स्विच कर दूँ तो उसको सेम डेटा मिलेगा, इस पे भी स्विच कर दूँ तो सेम डेटा। सर्वर तो होंगे लेकिन मिररिंग में मेरे डिस्क की मिररिंग हो जाती है, सेम 2 डिस्क आ जाती हैं ए और बी, तो जो डिस्क की पैरिटी ए पे राइट होती है वही बी पे राइट होती है, ठीक है। इसके बाद है एसक्यूएल क्लस्टरिंग। ये 3 मॉड होते हैं जिसके थ्रू हम सीक्वल, अब हमें बताना पड़ता है सीक्वल टीम को हमें मिररिंग चाहिए या ऑलवेज ऑन चाहिए। अगर मैंने एज्योर पे जो कॉन्फ़िगरेशन की है उस पर मैंने ऑलवेज ऑन लिया था, उस पर कॉन्फ़िगर किया था डीआर के साथ,
डिज़ास्टर रिकवरी। तो जो डिज़ास्टर रिकवरी में डेटाबेस था, जैसे मान लो ये डिज़ास्टर रिकवरी का है और ये मेरा लाइव डेटाबेस है प्रोडक्शन का, इन दोनों के बीच में मैंने सिंक करा के ऑलवेज ऑन किया था। तो मोस्टली ऑलवेज ऑन को ही लेके चलना है। मिररिंग वहाँ पे होता है कि प्रोडक्शन पे ही मुझे 2 डेटाबेस रखने पड़ेंगे सर्वर, लेकिन और 2 मुझे यहाँ पे भी रखने पड़ेंगे, इन दोनों को आपस में सिंक कराना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ऑलवेज ऑन ले लें, एक डिज़ास्टर रिकवरी के लिए और एक इसके लिए। और याद रखना कि अगर कोई पूछता है तो बोलना हाँ मेरे यहाँ डिज़ास्टर रिकवरी का इन्वायरमेंट था। और डीआर इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं, सपोज ये मेरा प्रोडक्शन है जो चल रहा है और ये डिज़ास्टर रिकवरी, ये कभी नहीं चलता, वर्क नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ताउते तूफान आ गया, साइक्लोन, ये पूरा डेटाबेस डेटा सेंटर मेरा क्रैश कर गया। उस टाइम पे ऑटोमेटिकली डीआर ऐसे कॉन्फ़िगर, जैसे ही ये क्रैश करेगा यहाँ की जो क्रिटिकल एप्लीकेशन और सारी चीज़ें हैं वो इधर आ जाएंगी, लेकिन डेटाबेस जो है वो तो सेम है ना, क्योंकि यहाँ का डेटाबेस आपस में ऑलवेज ऑन के थ्रू सिंक है। तो जो क्रिटिकल एप्लीकेशन होंगी वो एक्सेसिबल रहेंगी यूज़र के लिए। तो हर एक का डीआर इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है। फिर है व्हाट हैपन इनसाइड द, ये वाला छोड़ देना, इस डायग्राम को मैं जब सब समझा लूँगा तब बताऊँगा कि कैसे एप्लीकेशन लॉन्च होती है। मैंने 2 वीडियो और दिए थे इसका कि हाउ इनोमिनेशन प्रोसेस और सिट्रिक्स का लॉन्च प्रोसेस, इसको एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है, रीड कर लेना। किसी ने वो वीडियो देखा है सिट्रिक्स लॉन्च प्रोसेस वाला? 2 वीडियो मैंने सेंड किए थे। नहीं, आपने हमें नहीं वो वीडियो सेंड करे। आपने लास्ट ये रिकॉर्डिंग वाला जो सेशन था ना, इंटरव्यू क्वेश्चन वाला, वही आपने सेंड करा था। नहीं लॉन्च वाला उसके साथ भी मैंने 2 वीडियो सेंड किए हैं। नहीं, मेरे साथ में रिकॉर्डिंग खोल नहीं, लॉन्च वाला नहीं हुआ। व्हाट इज मशीन कैटलॉग ऑप्शन, अब ये मशीन कैटलॉग, इसमें ये पूरा स्टेप दिया है कैसे मशीन कैटलॉग क्रिएट होता है, क्या क्या ऑप्शन आता है, ठीक है। हाउ विल क्रिएट द मशीन कैटलॉग, जो तुम उसमें देखोगे ना कार्ल स्टालहुड में, उसी का ये पूरा स्टेप है, ये नीचे ये दे रखा है, ठीक। डिफरेंस बिटवीन ओएस वीडीए एंड डेस्कटॉप वीडीए। ओएस वीडीए जो होता है अपना, उसमें लिमिटेड एक टाइम पे एक ही यूजर एक्सेस कर पाता है, लेकिन जो हमारा सर्वर वीडीएज होते हैं उसमें वन टाइम में मल्टीपल यूजर्स लॉगिन कर पाते हैं उसके। तो इसको बस एक बार रीड करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें अभी। नेटवर्क पोर्ट एंड, अब ये पोर्ट वाला है तो पोर्ट पे ज़्यादा कंफ्यूज ना होना। वीडीए के लिए मैंने दिया आईसीए पोर्ट पे चलता है, आईसीए पोर्ट नंबर ये है टीसीपी यूडीपी। तो तुम्हें केवल आईसीए का पोर्ट नंबर याद करना है, सेशन रिलायबिलिटी का पोर्ट नंबर है ये एचडीएक्स के लिए आईसीए ओवर एसडीएक्स, ये इस पे चलता है। ये 8008 जो था वेब सॉकेट के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही ये फ्रेमहॉक के लिए है, ये है तुम्हारा प्रिंट सर्वर के लिए। लेकिन बेसिकली जो तुम्हें पोर्ट्स याद रखने हैं उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इससे नहीं, ये और ये सारे, ठीक है। इतने तो अभी पता होने चाहिए, बाकी मैं आगे धीरे धीरे बताता जाऊंगा, जैसे इसको इंक्रीज करते जाना। अब ये आ गया प्रोविजनिंग सर्विस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एमसीएस एंड पीबीएस, इसको छोड़ देना क्योंकि जब मैं पीबीएस बताऊंगा तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा। और इसके बाद है, हाँ एक चीज़ याद रखना, एमसीएस एज्योर या किसी भी क्लाउड पे सपोर्ट करता है, एज्योर पे सपोर्ट करता है, एडब्ल्यूएस पे, बट पीबीएस सपोर्ट नहीं करता है। पीबीएस क्लाउड को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। मेजर डिफरेंस। अब यहाँ से ये तुम कर लेना लाइसेंस सर्वर वाला। लाइसेंस सर्वर चाहे तुम्हारा पीबीएस में क्वेश्चन है या ज़ेनऐप में आए या ज़ेन डेस्कटॉप में आए, व्हाट हैपेंस इफ लाइसेंस सर्वर गोज डाउन, सिंगल आंसर।
सिंगल आंसर सभी के लिए। व्हाट हैपेंस इफ द लाइसेंस सर्वर गोज डाउन फॉर पीवीएस, फॉर ज़ेनएप, फॉर ज़ेन डेस्कटॉप, इट्स अ ग्रेस पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 days। ओके, किसी में कंफ्यूज नहीं होना कि पता चला ज़ेनएप ज़ेन डेस्कटॉप को छोड़ के उसने पूछा कि पीवीएस में लाइसेंस सर्वर डाउन होगा तो क्या होगा, तो भाई 30 डेज का ग्रेस डाउन है। ठीक है, फिर ये है जनरल लाइसेंसिंग क्वेश्चन, ये वाले देख लेना लास्ट के क्वेश्चन, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। ठीक है, ये ठीक, ये डॉक्यूमेंट मैंने शेयर कर रखा है वैसे तो, लेकिन आज का जो भी चीज़ें मैंने एडिट की हैं ना इसमें, ये भी शेयर। वो भी मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो